Good morning, student. This is my third video on the topic softening method, which is for BE first year chemistry, unit 1, water technology. And the today's topic is softening method, in which we are going to study about the ion exchange method. What is meant by ion exchange? Ion exchange is a process. They are the complex organic molecules having giant hydrocarbon framework. जिसमें क्या होता है, वो क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है और जिसमें है हाइड्रोकार्बन की वो फ्लेम होती है ना, फ्रेमवर्क होता है. और आयन एंड पॉलीमर्स एंड रेजिन्स क्या है, एक पॉलीमर है विच हैविंग अ लॉन्ग चेन, जिसमें लॉन्ग चेन होती है. लेकिन लॉन्ग चेन किसकी होती है, वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स की होती है. ठीक है. आयन एक्सचेंज रेजिन्स इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स. What is meant by cation exchange resins? Cation ion exchange is a containing ion resin containing acidic group are called cation exchange resin. Acidic group means, for example, RCOOH or RSO3H, in which RCOH when combined with calcium we get RCOOCa plus twice hydrogen atom, which is acidic. We get acid. And this acid get contact with the negative atom, which may be of CaCl2 or CaSO4. SO4 has a negative charge, therefore H may be gets attached to the SO4 group to form a H2SO4 acid. Or CaCl2 when combined with CaCl2, it gets combined in form of HCl, which is in form of acid, that is hydrochloric acid. It is known as cation exchange resins. And anion exchange resin. What is meant by anion exchange resins? The anion exchange resins containing the basic group are called anion exchange resins, in which, for example, NH3OH, it is a basic group. When NH3OH group is mixed with or combined with chlorine, we get our NH3Cl and OH negative ion, in which we get OH as a basic group. OH as a basic group, and from this basic group we get combined with the acid group to form a base, that is ion exchange. OH get converted into which outside we get OH, it gets combined with the positive charge of the another atom to form another molecule. That is this process is known as anion exchange procedure. Now we have to study it with the help of diagram. Look at this picture. In this, hard water is passed through the cation exchange column first, in which means this first column, cation exchange column first, which remove all the cations like calcium, magnesium, etc. from it, and equivalent amount of hydrogen ions are released from this column to water. क्या होता है इसमें कैटायन एक्सचेंज कॉलम में? कैटायन एक्सचेंज कॉलम में जो भी उसमें कैटायंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, रिमूव ऑल कैटायंस like calcium, magnesium, etc. from it, and equivalent amount of hydrogen atom are released from this column to water. ये भी जो भी है इसमें प्रेजेंट है वो क्या करता है, उसमें क्या है, जो कैटायंस है वो क्या होता है, रिमूव होता है और रिलीज फ्रॉम देयर कॉलम टू वाटर, वहाँ पे वाटर के पास हो जाता है. ठीक है. आफ्टर कैटायन एक्सचेंज कॉलम द हार्ड वाटर इज पास थ्रू द एनायन एक्सचेंज कॉलम. जो भी इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, हार्ड वाटर प्रेजेंट है. हार्ड वाटर में क्या होता है आपको पता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वो प्रेजेंट होता है, पता है, कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. और जो कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो कहाँ पे पास हो रहा है, वो इनफ एनायन जो भी है वो कहाँ पे पास हो रहा है, ये पूरा एनायन के एक्सचेंज में पास हो रहा है. ठीक है. आफ्टर कैटायन एक्सचेंज कॉलम द हार्ड वाटर इज पास थ्रू द एनायन एक्सचेंज कॉलम विच रिमूव ऑल एनायंस लाइक SO4, क्लोरीन, एक्सेट्रा. इसमें क्या प्रेजेंट है, अब इसमें क्या प्रेजेंट है, एनायन एक्सचेंज में SO4, Cl, ये एटम इसमें प्रेजेंट है.
ठीक है, ये वो क्या करता है, रिमूव करता है। इन द वाटर एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ OH आयन आर रिलीज। अब जो कैटायन में है, कैटायन में क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर में। और एनायन एक्सचेंज में क्या फॉर्म आ रहा है, OH। एनायन एक्सचेंज में क्या फॉर्म आ रहा है, OH। OH फॉर्म हो रहा है एंड रिलीज फ्रॉम द कॉलम ऑफ द वाटर। और क्या हो रहा है, वो रिलीज फ्रॉम द कॉलम ऑफ द वाटर हो रहा है, ठीक है। द हाइड्रोजन एंड OH आयन रिलीज फ्रॉम द बोथ एनायन एंड कैटायन में से जो हाइड्रोजन और OH रिलीज हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है उसका, वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म हो रहा है। Thus the water coming from the exchanger is free from the cation as well as anion। therefore ये क्या हो रहा है, वो जो वाटर फॉर्म हो रहा है H पॉजिटिव OH मटेरियल, ये क्या है, फ्री फ्रॉम द एनायन, ठीक है। ये है वो जो फॉर्म हो रहा है वाटर, वो हो रहा है अपने को फ्री फ्रॉम ऑफ द एनायन। क्या फॉर्म हो रहा है, देखो, जो भी अपना क्या है, जो भी अपना कैटायन एक्सचेंज में, जो भी कैटायन एक्सचेंज में फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है उसमें इसका अपने को, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज के रिएक्शन देखते हैं पहले। ट्वाइस RH प्लस Ca 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव गिव्स R2O Ca 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H प्लस। ये कहाँ पे हो रही है रिएक्शन, ये कैटायन एक्सचेंज में, ठीक है। फिर एनायन एक्सचेंज में देखते हैं। एनायन एक्सचेंज में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ROH नेगेटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव, वी गेट RCl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखो चेक, ये देखो कैटायन में क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन। एनायन में क्या रिलीज हो रहा है, OH आयंस। और जो कैटायन और एनायन में जो OH आयन रिलीज हो रहे हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो कंबाइन होके फिर क्या फॉर्म हो रहा है अपने को, वो कंबाइन होके देखो, कैटायन में क्या रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव। एनायन में क्या रिलीज हो रहा है, OH नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके अपने को क्या मिल रहा है, व्हाट वी हैव गेट, वी गेट बैक वाटर, दैट इज H2O। अपने को क्या मिल रहा है, दोनों को मिला के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, फ्री फ्रॉम द कैट एनायंस। ये जो क्या है, ये फ्री है, कहाँ, विच इज फ्री वाटर, दैट इज फ्री आयन वाटर, फ्री आयन वाटर है। ये क्या है, जो अपने को ये वाटर मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है अपने को, फ्री आयन मिल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, पहले इसमें हार्ड वाटर में जो अपन कैटायन एक्सचेंज में डाल रहे हैं, उसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कैसे कैल्शियम मैग्नीशियम, वो क्या हो है, रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, रिलीज हो रहे हैं। और अपने को क्या मिल रहा है, उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिल रहा है, यानी एसिडिक ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये सब कैटायन में, ठीक है। और एनायन में क्या होता है, एनायन में क्या हो रहा है, एनायन में भी क्या है प्रेजेंट पे, SO4 ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है, ये भी क्या है, एनायन है। ये क्या है, ये उसमें के रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज हो रहे हैं, और अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, OH आयन मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, OH आयन मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो कैटायन और एनायन में के जो H और OH आयन मिल रहे हैं अपने को, वो कंबाइन होके क्या मिलता है अपने को, वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री फ्रॉम है आयंस, ये मॉलिक्यूल्स है फ्री फ्रॉम आयंस, देयरफॉर वी गेट अ फ्री आयंस मॉलिक्यूल, देयरफॉर वी गेट अ फ्री आयन मॉलिक्यूल्स। और इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्यों कर रहे हैं अपन, जो भी उसमें का क्या प्रेजेंट है, आयंस, यानी हार्ड वाटर जो प्रेजेंट है, हार्ड मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए अपन ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, आपको समझ में आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, EDTA प्रोसेस की देखेंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो को अच्छा लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू।